Hello everyone, welcome to next session. In today's session, I am going to explain you about yesterday what we have discussed. We have discussed about the Oersted rule and then we have discussed about the Biot-Savart's rule. What Biot-Savart's rule said? It says that dB equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. ये बायट-सवार्ट ने मिलकर ये एक रूल निकाला था कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट दैट इज इक्वल टू dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर. चलिए ठीक है, ये बात समझ में आ गई. लेकिन ये था हमारे मैग्नीट्यूड के बाद. अब बात आती है भाई डायरेक्शन का क्या होगा. What will be the direction of the magnetic field? डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगी मैग्नेटिक फील्ड की, उसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा सा रूल निकल के सामने आता है, दैट इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल. कौन सा रूल है? राइट हैंड थंब रूल. अगर हम राइट हैंड थंब रूल की बात करें तो उसमें ये है कि इन राइट हैंड थंब रूल, सपोज दिस इज योर direction of current. The thumb shows the direction of current and the curled finger will show the direction of magnetic field. So here we have discussed about the right hand thumb rule, in which if we can say that, if we can see that there is a current flowing in this direction, that means that the direction in is this direction. ये हमारी direction है. So what will be the magnetic field direction? The magnetic field direction will be this side. It means if the right hand thumb rule, if it is gone this direction, if it is gone in this direction, then it will be the magnetic field direction. So what is the value of right hand thumb rule here? The direction of right hand thumb rule is discussed in this way. That is the direction of current. Then the right hand thumb rule will be directed in this way, right? Now if this is the direction of current, if this is the direction of current like this, so here it will be the direction, it will be direction, it will go inside. Here is the direction, it will go inside. So the P point will show the inside direction. I have mentioned it with the cross, and when it goes inside, so it will go there and then it will come outside. So from here it will come outside, so it will be considered as dot. So please keep in mind that the right hand thumb rule shows that if it shows the direction of current, then the curl finger will show the direction of magnetic field. Clear and simple. Now I am going to discuss the magnetic field, the applications of simple Biot-Savart law, in which we will discuss about the application of Biot-Savart law on straight current carrying conductor. I will discuss on a circular loop. I will discuss on a uniform circular ring. All of it have a very simple calculation and the derivation. और कोई ना कोई डेरिवेशन ये समझ लीजिए कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आता ज़रूर है. पर्टिकुलर में इसमें 3 एप्लीकेशंस, 3 डेरिवेशंस की बात करूंगा. पहला डेरिवेशन है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. दूसरा एप्लीकेशन होगा आपका कि किस तरीके से एक सर्कुलर रिंग में, एक सर्कुलर कॉइल में हमारी मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस होगी. और तीसरा हमारा एप्लीकेशन होगा कि किस तरीके से एक सर्कुलर रिंग, व्हाट विल बी द रिंग, it can be a metallic ring, it can be a metallic wire in a form of ring, right, like a bangle. तो उस तरीके से किस हमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी, इसकी वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले वी विल डिस्कस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से आती है, तो उसको डिस्कस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्लीज कंसीडर द फिगर. फिगर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. हियर वी कैन सी दैट द XY इज द करंट कैरिंग कंडक्टर. ये एक कोई आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी पूरी लेंथ XY है. ठीक है, पूरी लेंथ क्या है, XY है. अब सपोज हमें इस पार्ट से यहाँ पे एक हमने दूर पॉइंट लिया है P, और इस P पॉइंट पे इसके द्वारा हमें मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है. क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है. हमने यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर किया जिसका नाम है dl, और इस dl से p पॉइंट तक का जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी वेक्टर r. ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये सभी को पता है. ठीक,
अब इतनी चीज़ हो गई, एक एक्स वाई लाइन हो गई, ये हमारा पी पॉइंट हो गया, यहाँ से ये डी एल एक हमने वो लिया है एलिमेंट, यहाँ से इसकी जो लेंथ हो गई वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेक्टर आर हो गया, जैसा हमने बायट-सवार्ट लॉ में कैलकुलेट किया था। अब इसके बाद हमें इसमें थोड़ी ज्योमेट्री करनी होगी। ज्योमेट्री क्या करनी होगी? ज्योमेट्री ये करनी होगी कि हमने y से इस p पॉइंट को जोड़ दिया इन द फॉर्म ऑफ डॉटेड, हमने x पॉइंट से इस p पॉइंट को जोड़ दिया इन द फॉर्म ऑफ डॉटेड, और क्या किया हमने एक्स वाई के बीच का एक पॉइंट लिया जिसका नाम है O। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो x से ये कितने सेंटीमीटर पे होगा? 2.5 सेंटीमीटर पे। इन द मिडल हमने नाम लिया O, और O से हमने उसको डॉटेडली यहाँ पे जोड़ दिया, और O से लेके P तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने सपोज किया दैट इज A। क्या नाम दिया? दैट इज A। क्लियर? अब देखिए भाई, थोड़ा एंगल्स की बात कर लें। इस P पॉइंट से Y, ये जो तुम्हारा एंगल है, ये जो तुम्हारा एंगल है जो कि P पॉइंट से Y के बीच में बन रहा है, मतलब A और Y के बीच में, इस लाइन के बीच में बन रहा है, A डिस्टेंस और YP के बीच में, दैट इज सपोज टू बी φ1। क्या एंगल है? φ1। और इस OP और इस XP के बीच का जो एंगल है दैट इज सपोज टू बी φ2। ये हो गया φ1, ये हो गया φ2, और इसको हमने कंसीडर किया है φ। ये गलती से मैंने थीटा लिख दिया था, इसको मैंने φ किया है। तो आगे कहीं भी आपको थीटा जैसे मिले, जैसे ये थीटा अगर आप देख सकते हैं थीटा लिखा है, लेकिन एक्चुअली थीटा नहीं, ये φ है, क्योंकि यहाँ पे थीटा नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। प्लीज़ कंसीडर यहाँ पे सब φ है। क्लियर? यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं सब φ के टर्म्स में चलेंगे। तो अगर ये φ1 हो गया, ये φ2 हो गया, तो हमने क्या किया, इस A वाली डिस्टेंस और इस QP के बीच का एक एंगल ले लिया जिसका नाम है φ। क्या नाम ले लिया? φ। तो क्या कोई φ की वैल्यू बता सकता है? φ की वैल्यू क्या हो जाएगी? φ की वैल्यू कुछ जिस तरीके से होगी, हम इस पूरी डिस्टेंस में ये वाली डिस्टेंस जो है वो माइनस कर दें, दैट विल बी इक्वल। क्लियर? तो अगर हम क्या करें कि ये हमारा φ हो गया, ये हमारा φ2 हो गया, ये हमारा φ1 हो गया। अब अगर ये A तुम्हारा यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सो दैट विल बी 90। अगर ये 90 हो गया तो ये एंगल कितना हो गया भाई? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 180। सो दैट इज 90 प्लस φ प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180। दिस 90 प्लस φ plus this angle, let is to be angle to be Q, angle Q equal to 180. So the angle Q will be equal to 180 minus 90 minus 5, that is equal to 90 minus 5. So this angle will be equal to 90 minus 5. कितना एंगल हो गया? That is equal to 90 minus 5. ठीक, सभी को समझ में आ गया? ये सिंपल सा एक फिगर है। क्या फिगर है कि ये एक्स वाई है पूरी, जिसकी कोई भी सर्टेन लेंथ हो सकती है। इस सर्टेन लेंथ के बाद इसके बाद क्या है इसमें? इसके बाद ये एक पी पॉइंट है जो कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, फिर यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर है। ये हमारा 90 डिग्री हो गया, इसके बीच का एंगल 90 माइनस फाइव हो गया। ये φ1 बना रहा है, ये φ2 बना रहा है। So the magnetic field due to small element dl, magnetic field due to small element dl कितना हो जाएगा? इस dl द्वारा magnetic field कितनी हो गई? According to Biot-Savart's law, that is gb equal to mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon r square के बराबर हो गया। अब ideal sin theta upon r square, थीटा क्या होता था? इसके और इसके बीच का एंगल होता था, लेकिन यहाँ पे इसके और इसके बीच का एंगल कितना है? 90 माइनस फाइव है। तो यहाँ पे थीटा की जगह हम सिंपली पुट कर देंगे 90 माइनस फाइव अपॉन आर स्क्वायर। प्लीज़ कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब इसके बाद क्या करिए, इस ओ पी क्यू में ये जो तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल है, यू कैन सी दैट इन ओ पी क्यू, ये जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ज़रा दो चीज़ें निकाल लीजिए। सबसे पहली चीज़ निकालिए कॉस फाई। अगर इसमें से अगर आप कॉस फाई की वैल्यू निकालेंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल में, सो दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होगा। बेस हमारा क्या है? ए है, हाइपोटेनस क्या है? वेक्टर आर है। तो कॉस फाई की वैल्यू क्या हो गई? ए अपॉन आर हो गई। इससे आर की वैल्यू निकाल लो, ए अपॉन कॉस फाई। 1 अपॉन कॉस फाई सेक फाई के बराबर होगा, तो ए सेक फाई हो गई। अभी ये वैल्यू याद रखिए क्योंकि इसकी अभी हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। सो प्लीज़ कीप इन माइंड, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि क्यों निकाली जा रही है वैल्यू। भाई कोई ना कोई चीज़ होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई मुख्य कारक होता है, तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन दीज ज्योमेट्री इन योर वर्क।
तो इसके बाद हम अगर tan phi की इसमें से वैल्यू निकालेंगे, tan phi की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, बताना ये था कि यहाँ से लेके ये जो dl एलिमेंट लिया था, इस एलिमेंट और इस O के बीच का जो लेंथ है दैट इज सपोज टू बी L, इसको हमने L माना। तो tan phi अगर करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया L, बेस क्या हो गया A, तो tan phi की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज L अपॉन A। तो L की वैल्यू कितनी हो गई, A tan phi के बराबर हो गई। तो हमें एक R की वैल्यू मिल गई, एक हमें L की वैल्यू मिल गई। अच्छा ठीक है, अब आप क्या करिए कि इस L इक्वल टू A tan phi को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू phi, क्या करें, हम डिफ्रेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू phi, तो हमको dl की वैल्यू मिल जाएंगी। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, बहुत ध्यान से समझो, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ देखिए भाई, यहाँ है dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 माइनस फाई अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आई, ये सब चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। आर की वैल्यू हमको इसके टर्म्स में मिल गई, आर की वैल्यू a sec फाई मिल गई है, ये हम अभी पुट कर देंगे। लेकिन इस dl का क्या होगा, इस dl को तो हमको निकालना पड़ेगा। तो dl को रिमूव करने के लिए भाई साहब हमको l इक्वल टू a tan phi को डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू phi। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dl अपॉन डी फाई की वैल्यू a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, tan phi का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर phi होता है, तो dl इक्वल टू a इंटू sec स्क्वायर phi डी फाई के बराबर हो गया। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 माना, इसको अगर हमने इक्वेशन नंबर 1 माना तो dl की जगह हम लोग a sec स्क्वायर phi रख देंगे और r की जगह a sec phi रख देंगे। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यू को रखा, तो dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई a sec स्क्वायर phi cos phi डी फाई अपॉन a स्क्वायर sec स्क्वायर phi। तो sec स्क्वायर phi, ध्यान रखिएगा ये थीटा नहीं है, यहाँ पे phi है, प्लीज़ कीप इन माइंड, थीटा नाम की इसमें कोई चीज़ नहीं है। गलती से मुझसे थीटा लिख गया था तो मैंने उसको phi बनाया है, सो प्लीज़ कीप इन माइंड। तो ये sec स्क्वायर phi a की वैल्यू इस स्क्वायर से कट गई, हमारे पास रिमेनिंग क्या वैल्यू बची हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बची है dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई a आई cos phi डी फाई के बराबर बचा। ये हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बची है, ठीक। अब इसके बाद ये हमारे पास dB की वैल्यू बची, काटने कटाने के बाद पूरा कंप्लीट बचा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड फॉर होल वायर क्या हो जाएगा, B। इसको पूरा हम क्या कर दे, इंटीग्रेट कर दे। इसको जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे वी विल गेट द वैल्यू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई cos phi डी फाई के बराबर हो गया। अब बात आती है ये लिमिट कहाँ से आई, भाई लिमिट भी लगाना पड़ेगा, -phi2 से +phi1। ये लिमिट कुछ इस तरीके से आई, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 0 पॉइंट है, ये पूरा 5 सेंटीमीटर का है। अगर ये ओरिजिन हो गया तो ऊपर +2.5 होगा, -2.5 नीचे होगा। तो मतलब अगर -2.5 नीचे होगा तो phi2 की वैल्यू नीचे हो गई और phi1 की जो वैल्यू हो गई वो ऊपर हो गई। तो माइनस हमारा नीचे है, प्लस हमारा ऊपर है, तो दैट्स वाई वी हैव टेकन द वैल्यू -phi2 इन डाउनवर्ड एंड +phi1 इन अपवर्ड्स। सो द कंडीशन विल बी -phi2 टू +phi1, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा कि -phi2 टू +phi1 कहाँ से आया, ये वैल्यू आपकी इस तरीके से निकल के आई है। सो -phi2 टू +phi1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए आई cos phi डी फाई के बराबर हो गया। तो B की वैल्यू क्या हो गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए -phi2 टू +phi1 cos phi डी फाई के बराबर। ये सब हमने बाहर ले लिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए आई, इसको इंटीग्रेट किया, cos phi का इंटीग्रेशन जो होता है वो sin phi के बराबर होता है, और हमारे पास वैल्यू है -phi2 टू +phi1। तो अगर इसमें हम लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के बराबर आ गया। तो B की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए, सो दैट इज sin phi1 माइनस ऑफ phi2। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो माइनस इसमें से बाहर निकल के आएगा तो उसको प्लस बना देगा। तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए साइन phi1 प्लस साइन phi2 की वैल्यू हमारे पास हो गई। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन व्हेन वी टेक द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ थिन स्ट्रेट वायर। क्लियर?